So children, today we will start with the lesson solids, liquids and gases. But before starting with the lesson, let's do this exercise. Classify these substances as solids, liquids and gases. Here are some words written. You have to read the words and tell कि ये solid है, liquid है या gas है. Okay? Like wood. Wood कैसा है? Solid है. So you will write wood here. Oxygen. Oxygen is a gas. So you will write oxygen here. Here on screen I am not getting good handwriting, but you can write in a good handwriting. Okay? Lime juice is a liquid. So you will write lime juice here. Similarly, you will read all the words and you have to write in these columns of solids, liquids and gases. All the words you have to classify according to their state. We are surrounded by a number of things of different types. We already know that anything that occupies space and has mass या weight होता है जिसका, it is called matter. जो भी exist करता है, जो जगह लेता है और जिसका वज़न होता है is called matter. Now we'll read about molecules. जो भी matter होता है, whatever we are seeing around, all matters are made up of tiny particles called molecules. कुछ भी matter जो होता है वो छोटे छोटे particles जिनको हम molecules बोलते हैं उनसे बना हुआ होता है. एक molecule, एक किसी substance का जो molecule होता है वो किसी दूसरे substance के molecule से different होता है, and the force of attraction between the molecules of a substance is always there. Molecules are further made up of very tiny particles called atoms. Molecules के अंदर भी छोटे छोटे और वो बना हुआ होता है छोटे particles से जिनको हम atoms बोलते हैं. ठीक है, जैसे atoms, जैसे हम ईंटों से, छोटी छोटी ईंटों से हम दीवार बनाते हैं और दीवारों से घर बनता है, तो सिमिलरली वैसे ही atoms को भी हम building blocks बोलते हैं. ओके, अब एक ही तरह के जो atoms से बना हुआ होता है कोई substance, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, और अलग अलग तरह के एटम से जो सब्सटेंस बना हुआ होता है उसको हम कंपाउंड बोलते हैं. लाइक एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन गैस है, वो एक एलिमेंट है. व्हाई? बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो अ गैस एंड इट्स एन एलिमेंट. व्हाई? बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. But water is a compound. Why? Because it is made up of two kinds of atoms, hydrogen and oxygen atoms. Look here, we'll see the molecule of hydrogen and molecules of oxygen combines together to make water molecules. Okay? Now we'll study about states of matter. On the basis of arrangement of molecules, matter is classified into three states: solid, liquid and gas. First of all, we will know about solids. A solid has a definite shape and volume. It cannot be changed until some external force is applied on it. इसमें solid में क्या होता है? They have a fixed shape. एक तभी जैसे आप कोई भी चीज़ देखते हो, कोई पत्थर देखा आपने, कोई डोर देखा आपने, बॉटल देखी, बुक देखी, everything whatever like it we feel is solid, they have a fixed shape. और उनका क्वांटिटी, उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है. और जब तक हम उसको, जैसे पत्थर को आप जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगा के तोड़ोगे नहीं, जब तक उसका शेप नहीं चेंज हो सकता. सो सॉलिड्स दे हैव अ डेफिनेट शेप. इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी बहुत इंटेंस होता है. इट्स वेरी हाई. दैट्स वाई मॉलिक्यूल्स hold each other very tightly because of that force. Example of solids are ice, rock, wood, book, chair, etc. Okay. Now we move on to liquid. A liquid has a definite volume, but they does not have a definite shape. Liquid का क्या होता है? Volume तो fix होता है, quantity तो fix है कि 500 ml है या 200 ml है, but उनका shape fix नहीं होता है. वो कंटेनर का शेप लेते हैं. जैसे ग्लास में अगर पानी डाला हुआ है 500 ml, तो वो ग्लास का शेप लेगा. उसी को हम अगर 500 ml को बॉटल में फिल कर देंगे
तो वो बॉटल का शेप ले लेगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज़ लेस देन दैट इन सॉलिड्स। तो जो मॉलिक्यूल्स आपस में इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में लो होता है। दैट्स वाई दे मूव लिटिल फ्रीली। सॉलिड्स के अंदर उनको मूव करने के लिए जगह नहीं होती, बट लिक्विड्स में दे हैव स्पेस बिटवीन देम टू मूव। एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड्स आर water, juice, milk, oil, shampoo, etc. Okay. Next state of matter is gas. A gas has neither definite shape nor definite volume. गैस का क्या है, ना तो उसका फिक्स शेप होता है ना उसका फिक्स वॉल्यूम होता है। बिकॉज उसका जैसे हम उसको अगर प्रेशर दें, जैसे अब कोई चीज़ बड़ी टंकी में डली हुई है, इफ़ वी प्रेस इट, अगर उसको हमने दबा दिया तो वो छोटी बॉटल में भी आ सकता है, फिर भी वो गैस रह सकता है। और उसका शेप, जैसे पहले अगर बॉटल में डाला हुआ है बॉटल का शेप लेगा, उसमें टैंक में डाला हुआ तो टैंक का शेप लेगा। सो बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कैन ईजिली मूव इन एनी डायरेक्शन। वो कहीं भी घूमते रहते हैं, इधर उधर कैसे भी, कोई भी डायरेक्शन में हैपहैज़र्डली द मॉलिक्यूल्स मूव इन अ गैस। हम जब उनको कंप्रेस करते हैं, मॉलिक्यूल्स इन अ गैस कैन बी ब्रॉट टुगेदर बाय स्क्वीजिंग देम और कंप्रेसिंग टुगेदर। द स्पेस बिटवीन देम बिकम्स लेस, क्योंकि हमने उनको दबा दिया है तो उनके बीच में जगह कम हो गई, तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, तो वो छोटी कंटेनर में आ सकते हैं। Thus a gas can be compressed. Example of gases are air, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, etc. And this is one activity, children, you have to do on your own. You have to read and say whatever sentence they are saying. This is a quality of solid, liquid or gas. So you can write in front of them here it's solid, liquid or gas. Okay, do this activity on your own and send the pic of the activity to ma'am. Next topic is solubility of solids, liquid and gases in water. इसमें मतलब कितना कोई भी सॉलिड या लिक्विड या गैस पानी के अंदर मिल सकता है, दैट इज़ कॉल्ड द इट्स सॉल्युबिलिटी। उसी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बोला जाता है इसको। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस की एक वो प्रॉपर्टी टू डिज़ोल्व इन सम अदर सब्सटेंस, किसी और दूसरे सब्सटेंस में घुलने की, डिज़ोल्व मीन्स घुलना, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं solubility. That property is called solubility. The substance which get dissolved in other substance is called solute. जैसे कोई भी एक सब्सटेंस है, वो अगर किसी दूसरे सब्सटेंस में घुल जाता है तो उस सब्सटेंस को solute बोला जाता है, and the other substance in which the solute dissolves is called the solvent. जैसे हम चीनी पानी में मिलाएंगे तो उस चीनी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। और जिसके अंदर हम मिला रहे हैं, जैसे हम पानी में मिला रहे हैं चीनी को, तो उस पानी को बोला जाता है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मिलने से एक जो यूनिफॉर्म मिक्सचर बनता है, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। सो द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट is called solution. Water is said to be a universal solvent. Universal solvent means उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। पानी के अंदर हम चीनी मिला सकते हैं, नमक मिला सकते हैं, we can mix lime juice in water, we can mix any squash in water. So basically water is a universal solvent and it can dissolve many substances in it. Solids in water. To understand the concept of solubility of solids, there is one activity here. एक जार में सैंड है, दूसरे जार में सिर्फ मार्बल्स है। सो मार्बल्स क्या होता है, दे हैव अ फिक्स शेप। सो छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए हैं मार्बल्स के इस जार में, उनके बीच में जहाँ पे मार्बल्स हैं, मार्बल्स के बीच में एयर है। ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल पोर दिस jar of sand in this. सैंड इसके अंदर आएगी
तो जहाँ जहाँ पे मार्बल्स के बीच में जगह है, द सैंड विल ऑक्यूपाई दैट स्पेस इन बिटवीन दोज मार्बल्स. सो ऐसे आप ये एक्टिविटी करेंगे एंड यू विल रीड दिस एक्टिविटी ऑन योर ओन. उससे ये पता चलता है कि मार्बल सॉलिड्स के बीच में काफ़ी जगह होती है. नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विड्स मिसिबल इन वाटर. देयर आर सम लिक्विड्स विच कैन डिज़ोल्व इन वाटर ईजीली. बहुत सारे लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो पानी में ईजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं. सच लिक्विड्स आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स. उनको मिसिबल लिक्विड्स कहा जाता है बिकॉज दे डिज़ोल्व वेरी ईजीली. फॉर एग्जाम्पल, ग्लिसरीन, alcohol and nail paint remover are miscible in water. ये सब आराम से खुल जाते हैं. However, some liquids like oil, kerosene, ghee, etc. they do not dissolve in water, so they are called as immiscible liquids. Gases soluble in water. पहले तो हमने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा, कौन सा सॉलिड वाटर में डिज़ोल्व होता है. फिर हमने लिक्विड्स के बारे में पढ़ा. नाउ वी आर रीडिंग अबाउट गैसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड आर द गैसेस विच कैन डिज़ोल्व इन वाटर. वाटर इन द ओशन, rivers and lakes contain dissolved oxygen and nitrogen. Aquatic animals like fish breathe the oxygen dissolved in water. पानी में ये गैसेस बहुत easily मिल जाती है. What happens when water starts boiling? This is also one interesting topic we must know. Bubbles are formed on the sides of the vessel and at the bottom as well. पानी जब उबलता है तो जो भी बर्तन जिसमें हम उबाल रहे हैं उसके बॉटम पर भी बबल्स होंगे और उसकी दीवारों पर भी बबल्स होंगे. Why this happens? These bubbles are of the dissolved gases that separate from the water on heating. जब हम पानी को हीट करते हैं, बॉईल करते हैं, तो उनमें से वो जो घुली हुई गैसेस होती हैं वो फिर वो इधर उधर निकलना चाहती हैं. So they get these bubbles, these are like they stick to the wall of the container. Okay? जो आप जैसे आप ये कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसमें से गैस निकलती है ना. So the gas that comes out of your cold drink is carbon dioxide. This is dissolved in water under great pressure. Now we move on to our next topic, physical and chemical changes. Changes in which no new substances are formed are called physical changes. ऐसे changes जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, they are called physical changes. Physical change is temporary in nature. It can or cannot be reversed. जैसे अगर हमने कोई चेंज किया है तो वो कभी तो वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, कभी नहीं भी आता है. So both the cases are there. They are reversible also in some cases and they are irreversible also. For example, tearing of paper is a physical change as no new substance is formed but it cannot be reversed. जैसे हमने एक पेपर फाड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया उसको, तो है तो फिज़िकल चेंज बट इट इज़ इरिवर्सिबल. फिज़िकल चेंज क्यों है? बिकॉज कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है. ओके, पेपर का फॉर्म छोटा हो गया है तो it's a physical change. Similarly, freezing of water into ice is a physical change but it is रिवर्सिबल, क्योंकि आइस वाटर में बदल सकता है और वाटर आइस में बदल सकता है. बट इसमें भी कोई नया फॉर्म नहीं बन रहा है. पानी तो पानी, मतलब वो मॉलिक्यूल्स तो वो के वो ही रहते हैं. सो इट्स अ फिजिकल चेंज. नेक्स्ट इज द चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस. इसमें क्या होता है, जो एक ओरिजिनल सब्सटेंस से हम स्टार्ट करते हैं वो एक ऐसा चेंज होता है जिससे नया सब्सटेंस बन जाता है. सो दीज चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस. दे आर परमानेंट इन नेचर एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड. उनसे हमको ये रिवर्सिबल नहीं है, हम उनसे ओरिजिनल सब्सटेंस वापस नहीं हासिल कर सकते. फॉर एग्जांपल,
A piece of paper on catching fire burns and turns into grey ash. जब पेपर जल जाता है तो राख में बदल जाता है. So we cannot get the paper out of that ash. So it's irreversible. और केमिकल चेंज भी हो गया बिकॉज पेपर जो पहले फॉर्म था वो अब एशेस के फॉर्म में बदल गया है. अ ग्रीन मैंगो ripens and turns into a sweet yellow fruit. कच्चा आम पक के मीठे मीठे आम में बदल जाता है तो वो भी इरिवर्सिबल है क्योंकि वापस से पका हुआ आम कच्चा आम नहीं बन सकता है. कच्चे आम से अचार बनता है और मैंगो हम एज अ फ्रूट खाते हैं. सो सब्सटेंसेस भी ओरिजिनल सब्सटेंस से जो नया बना है दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट. इट्स अ केमिकल चेंज. बोथ दीज चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स. जो हमने पेपर का एग्जाम्पल लिया था उससे भी हमको पता चलता है कि ऐश वापस पेपर में नहीं बदलेगा. जो पका हुआ आम है वो भी वापस कच्चे आम में नहीं बदलेगा. सो दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड. सो दिस इज़ अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. नाउ वी विल discuss about the differences between the two changes, chemical changes and physical changes. First difference is no new substance is formed in physical change, and in chemical change always a new substance is formed. Second difference is the molecular composition of the substance does not change. सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाता है लेकिन मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन वो ही रहता है. जैसे आइस का एग्जांपल लिया था हमने, आइस वाटर में बदल गया और वाटर वापस आइस में, तो फॉर्म तो चेंज हो गया बट मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन वो ही रहा. सो इट्स अ फिजिकल चेंज. बट इन केमिकल चेंज द मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑलवेज चेंजेस. नेक्स्ट डिफरेंस इज इट इज़ अ टेम्पररी चेंज. Original substance can be reversed by simple means in most of the cases. हमको original substance वापस मिल जाता है. So that's why it's a temporary change. But in chemical change, it is a permanent change. Original substance cannot be obtained back by any simple means. So it is an irreversible change. So these are the differences between the two. You have to learn these also thoroughly. Now this is also one activity. This needs to be discussed here about physical and chemical changes. You have to write P against the physical change. जो भी आपको लगता है कि physical change है उसके आगे आपको P लिखना है. And you have to write C against the chemical changes in the following examples. First example is burning of matchstick. माचिस जब जलती है तो वो जल के राख बन जाती है. You cannot get back the matchstick. So it's a chemical change. You will write C here. Cooking of food. खाना मम्मी बनाती है तो कच्ची सब्जियां यूज़ करती हैं. जब खाना बन जाता है क्या हम वापस उनसे कच्ची सब्जियां ले सकते हैं? No. So again it's a chemical change. Cutting tomatoes for a salad. अब सैलड के लिए मम्मी ने अगर टमाटर काटा है, खीरा काटा है तो क्या हुआ? फॉर्म चेंज हुआ है. बट टमाटर तो फिर भी टमाटर ही रहेगा, खीरा फिर भी टमाटर रहेगा, कोई नए फॉर्म में नहीं बना है. सो इट्स अ फिजिकल चेंज. नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम. आइसक्रीम अगर मेल्ट हो गई तो हम उसको अगर फ्रीज़ करेंगे तो वापस से वो आइसक्रीम बन जाएगी. सो दिस इज़ ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. नेक्स्ट इज शार्पनिंग ऑफ पेंसिल. पेंसिल तो शार्प हो गई, छोटी भी हो गई, फॉर्म भी बदल गया, बट वो फिज़िकल फॉर्म उसका चेंज नहीं हुआ है. मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन फॉर्म उसका चेंज नहीं हुआ है. वो पेंसिल की शेविंग्स में बदल गई है तो वो जो वुड पेंसिल में था वो शेविंग में बदल गया है तो वुड का वुड ही रहा. जो लेड है उसके अंदर वो लेड भी शार्प होके पाउडर बन जाता है शार्प करने के बाद में, तो फिर भी लेड तो लेड ही रहा. सो देयर इज़ नो केमिकल चेंज इन दिस प्रोसेस. सो अगेन दिस इज़ अ फिजिकल चेंज. लास्ट इज ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास बॉटल. बॉटल टूट गई. बॉटल किससे बनी है? जो सब्सटेंस ग्लास है वो बड़े उसके फॉर्म में एक शेप में होकर नहीं होकर टूट कर टुकड़े हो जाता है, तो उसमें फिर भी कुछ हमें नया सब्सटेंस तो नहीं मिला है. सो अगेन दिस इज़ अ फिजिकल चेंज. सो दिस इज़ वन एक्सरसाइज टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. यू कैन डू इट इन योर book. Okay, so this is how we finish with the chapter.
Once again, read thoroughly on your own and understand the concepts of solid, liquid and gas forms of matter.